Hello everyone, welcome to EduBridge, your learning partner for smart and simple studies. In today's video, we explore Class 10 Chapter 1 Chemical Reactions and Equations. Okay, so let's start. Consider the following situation of daily life and think what happens when. अपने आसपास की डेली सिचुएशंस को ऑब्जर्व करें एंड सोचें कि क्या होता है. जैसे कि मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स, गर्मियों में मिल्क को बाहर रूम टेम्परेचर पर रखा छोड़ दें. ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, ग्रेप्स खराब हो जाएंगे, फर्मेंट हो जाएंगे. फूड इज कुक्ड, खाना को पकाना. फूड गेट डाइजेस्ट इन आवर बॉडी, हाउ food get digest in our body and we respire, how we respire, how do we breathe, and all these reactions. In all the above situations, in ऊपर सारी situations में the nature and the identity of initial substance have somewhat changed. इन सब reactions में क्या होता है, जो identity थी initial starting में, वो after some time change हो जाती है. We have already learned about physical and chemical changes of matter in our previous classes. हमने अपनी previous class 9th में physical and chemical changes के बारे में study कर रखा है. Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place. जब भी chemical reaction occur होती है किसी भी substance में, then we can say that a chemical reaction has taken place. You may perhaps be wonderful as to what is actually mean by a chemical reaction. How do we come to know that a chemical reaction has taken place? हमें कैसे पता चलेगा कि किसी reaction chemical reaction हुई है या नहीं? Let us perform some activity to find answer to these question. चलो अब हम इस सारे questions का answer इन activities को पढ़कर समझेंगे. Activity 1.1. This activity needs the teacher's assistance. इस activity को हमें किसकी teacher की presence में करना है. It would be better if students wear suitable eyeglasses. और ये बहुत हमारे लिए better होगा कि हम eyeglass पहन के इस activity को perform करें in the presence of your teacher. Now, clean a magnesium ribbon about 3 to 4 centimeter long by rubbing it with a sandpaper. This is the magnesium strip. आपको क्या करना पड़ेगा, इस magnesium strip को clean करना पड़ेगा with the help of sandpaper. Okay. Hold it with a pair of tongs. This is the pair of tongs. इसकी मदद से आप इसे पकड़ें and burn it using a spirit lamp. और spirit lamp, ये है spirit lamp. इसकी मदद से आप इसको मैग्नीशियम के पेपर को बर्न करें. Collect the ash so form in a watch glass. अब इस watch glass में आपको यहाँ पर ash collect हो जाएगी. Burn the magnesium ribbon, keeping it away as far as possible from your eyes. और आपको क्या ध्यान रखना है, अपनी आईज के कांटेक्ट से, मतलब अपने आईज से थोड़ा सा दूर रखना है मैग्नीशियम रिबन को जब आप बर्न करें. अब आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करेंगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? You must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame. आप ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि जो मैग्नीशियम रिबन बर्न हुआ है with a white flame and change into a white powder. और नीचे वॉच ग्लास में आपको क्या मिलेगा, white powder. This powder is magnesium oxide. और जो ये white powder है, ये क्या है, ये magnesium oxide है. It is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in the air. अब ये जो magnesium oxide कैसे फॉर्म हुई है, क्योंकि आपने magnesium को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो आपको मिल गई मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है. Now let's study about activity 1.2. Take a lead nitrate solution in a test tube. एक टेस्ट ट्यूब में lead nitrate का solution लेना है. Add potassium iodide solution in this. उसमें potassium iodide का solution मिलाना है and observe करना है कि क्या chemical reaction आपको observe हो रहा है. Now activity 1.3. Take a few zinc granules. कुछ आपको zinc के granules, zinc के pieces लेने हैं. These are the pieces of zinc granules. Okay. In a conical flask. Conical flask क्या होती है, जो कोन की शेप में ये फ्लास्क दिख रहा है आपको, this is the conical flask. Okay. Add dilute hydrochloric acid or sulfuric acid to this. ठीक है. अब इसमें आपको क्या करना है, dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड आपको इसमें डालना है. हैंडल द एसिड विद केयर. अच्छा, एसिड जब आप इसमें डालें तो आपको बहुत ध्यान से ये काम करना है.
डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपन अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स? अब आपको इसमें कोई भी चेंजेस ऑब्जर्व होते हुए दिख रहे? टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, आप उसको हल्का सा टच करके देखें, इफ देयर एनी चेंज इन दिस टेम्परेचर, आपको ये थोड़ा सा हॉट दिखेगा, गर्म दिखेगा, एंड एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैसेज आपको यहाँ पर ऑब्जर्व होगी। फ्रॉम द अबव थ्री एक्टिविटी, जो आपने ये थ्री एक्टिविटीज करी हैं ऊपर, वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकिंग प्लेस। तो इसकी मदद से आपको पता चलेगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं। कैसे? या तो चेंज इन स्टेट, या तो उसकी स्टेट में चेंज हो जाएगा कुछ, चेंज इन कलर, या तो चेंज इन कलर होगा, या फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस, या तो कोई गैस इवॉल्व होगी, या फिर चेंज इन टेम्परेचर, या फिर वो उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, या इट बिकम्स हॉट और मे बी इट बिकम्स कोल्ड। एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस, जब हम अपने आसपास ऐसे चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं, वी कैन सी दैट देयर इज अ लार्ज वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शंस, तब हमें पता चलता है हमारे सराउंडिंग में ऐसे काफ़ी सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। वी विल स्टडी अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, और अब हम काफ़ी सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, उनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, कि हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब इस चैप्टर में अब हम पढ़ेंगे। तो 1.1 केमिकल इक्वेशन, सबसे पहले हमें केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न, जब हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो किस में कन्वर्ट हो गई थी? मैग्नीशियम ऑक्साइड में। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन अ सेंटेंस फॉर्म इट्स क्वाइट लॉन्ग, इट कैन बी रिटन इन अ शॉर्ट फॉर्म। अब ये सब पूरा एक्सप्लेन करने में आपको कितना लंबा प्रोसेस लगा, अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे, सिर्फ एक इक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं, सिंपलेस्ट वे जिसे बोलते हैं, सिंपलेस्ट वे, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। अब इसे कैसे करें? द वर्ड इक्वेशन फॉर द अबव मैग्नीशियम वुड बी, अब इसे कैसे लिखेंगे? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है, दीज आर द रिएक्टेंट्स एंड दैट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो कैसे, वो है हमारा राइट साइड में प्रोडक्ट। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन फॉर्म्स द मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज, और जो सब्सटेंस जो आपको केमिकल चेंज में कन्वर्ट हो रहे हैं, जैसे कि मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स, और जो नया सब्सटेंस बन रहा है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। A word equation shows change of reactant to product through an arrow. अच्छा, अब हम जो चेंज हो रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये किसकी फॉर्म, कैसे हम डिनोट करेंगे? एरो की फॉर्म में। ठीक है, द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद अ प्लस साइन बिटवीन दैम। दो चीजें, दो रिएक्टेंट्स हम यूज कर रहे हैं, इन बिटवीन वी यूज अ साइन ऑफ प्लस। Similarly, products are written on the right hand side with a sign प्लस बिटवीन देम। अगर यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है तो देयर इज नो साइन, बट इफ इन केस अनदर प्रोडक्ट इज फॉर्म देन वी यूज अ साइन प्लस बिटवीन देम। द एरो पॉइंट्स टुवर्ड द प्रोडक्ट, जहाँ प्रोडक्ट बनता है उस फॉर्म में हम उस डायरेक्शन में हम एरो बनाते हैं, एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, और ये एरो हमें डायरेक्शन बताता है प्रोडक्ट की फॉर्म होने में। ओके, ओके, नाउ राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। अब हम केमिकल इक्वेशन को कैसे राइट कर सकते हैं, कैसे लिखते हैं, ये हम इसमें पढ़ेंगे। इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे फॉर रिप्रेजेंटिंग केमिकल इक्वेशंस? कोई ऐसा शॉर्ट वे जिससे हम केमिकल इक्वेशंस को लिख सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं? केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फॉर्मूले इंस्टीड ऑफ वर्ड्स। अच्छा, अब हम वर्ड्स की फॉर्म में लिखने की बजाय हम केमिकल फॉर्मूले भी तो यूज कर सकते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में। A chemical equation represents a chemical reaction. Chemical equation ही आपको represent करती है chemical reaction जो हो रही है. If you recall formula of magnesium, oxygen and magnesium oxide, the above word equation can be, इसे कैसे लिख सकते हैं? Magnesium plus oxygen which denotes, क्या बन गया आपका? Magnesium oxide. Okay. Count and compare the number of atoms of each element on the left hand side and right hand side of the arrow. Now count, क्या count करना है? Number of atoms जो left hand side में है and the number of atoms on the right side. Is the number of atoms of each element the same on the both side? क्या दोनों तरफ number of atoms same है? Yes.
देन द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अगर दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स काउंटिंग इक्वल हैं देन योर इक्वेशन इज बैलेंस, और अगर नहीं है then the equation is unbalanced because the mass is not the same on both side of the equation। क्योंकि अगर आपकी इक्वेशन बैलेंस ही नहीं होगी तो दोनों साइड में masses इक्वल नहीं होंगे। Such a chemical equation is a skeleton chemical equation for a reaction। Equation 1.2 is a skeletal chemical equation for the burning of magnesium in air। Now अब हम सीखेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस हम कैसे कर सकते हैं। Recall the law of conservation of mass that you studied in class 9th। Conservation of mass, that you can neither be created nor be destroyed, it can be changed from one form to another। Okay, mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। This is the total mass of the element present in the product of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the element present in the reactant। means reactant और product में masses दोनों तरफ equal होनी चाहिए। in other words the number of atoms of each element remains the same। means अगर दूसरी तरफ से देखा जाए तो number of atoms दोनों side में equal होने चाहिए before and after a chemical reaction। hence we need to balance a skeletal chemical equation। इसलिए हमें balance करने की ज़रूरत पड़ती है chemical reaction को। लेट अस लर्न अबाउट बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। अब हम कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे उसके बारे में सीखते हैं। द वर्ड इक्वेशन अगर हम लिखते हैं जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, क्या मिलता है? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके, तो अब हम इसको, ये हमने अभी डिनोट किया है वर्ड फॉर्म में। नाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इन द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जिंक को हम बोलते हैं Zn, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जिंक सल्फेट जो फॉर्म होगा प्रोडक्ट ZnSO4 प्लस H2 दैट इज हाइड्रोजन गैस। लेट अस एग्जामाइन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑन बोथ द साइड्स। अब हम दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स को ऑब्जर्व करेंगे। जिंक के कितने एटम्स है? 1। हाइड्रोजन के कितने एटम्स है? 2 ऑन द रिएक्टेंट साइड। ओके, सल्फर 1 एंड ऑक्सीजन 4। Now, number of atoms in the product 1 zinc, 2 hydrogen, 1 sulfur and 4 oxygen। As the number of atoms of each element is the same on both sides, means दोनों तरफ number of atoms equal है, that is it is a balanced chemical equation। ठीक है, let us try to balance the following chemical। अब हम इसको balance करना सीखेंगे। okay, लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करना सीखते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास गिवन है आयरन प्लस H2O, इसको हम बैलेंस करेंगे जब इनका रिएक्शन होगा आयरन का और H2O का, तो हमारे पास आयरन ऑक्साइड फॉर्म होगी प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा स्टेप 1 क्या होगा? टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड each forward। do not change anything inside the boxes while balancing the equation। सबसे पहले बॉक्सेस में हम लोगों को पूरी केमिकल इक्वेशन लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद स्टेप 2, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ एटम्स को लेफ्ट हैंड साइड फॉर द रिएक्टेंट एंड राइट हैंड साइड फॉर द प्रोडक्ट लिख देंगे। आयरन के लेफ्ट हैंड साइड में 1 एटम है, हाइड्रोजन के 2 हैं एंड ऑक्सीजन का 1 एटम है। ऑन द प्रोडक्ट साइड आयरन के 3 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 4 हैं एंड हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। ये हम लोग नोट कर लेंगे। उसके बाद इट इज़ ऑफन कन्वीनियंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। सबसे पहले हम स्टार्ट किससे करेंगे? जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है उसको बैलेंस करेंगे। इट मे बी अ रिएक्टेंट और अ प्रोडक्ट, चाहे वो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, डजेंट मैटर, हम लोग को देखना है नंबर ऑफ मैक्सिमम एटम्स किसके सबसे ज़्यादा है। In that compound, select the element which has the maximum number of atoms. Using these criteria, we select Fe3O4 and the element oxygen in it. There are 4 oxygen atoms on the right hand side and only 1 atom on the left hand side. So सबसे पहले हमें क्या करना है? reactant side में 1 hydrogen है and there is oxygen, sorry, यहाँ पे हमारे पास 4 हैं, तो हम 4 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 लगा देंगे, तो हमारे यहाँ पर 4 ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड।
the number of atoms. It must be remembered that we cannot alter the formulae of the compound or element involved in the reaction. For example, to balance oxygen atom, now step 4, आयरन एंड हाइड्रोजन एटम आर स्टिल नॉट बैलेंस्ड. अभी हमने सिर्फ ऑक्सीजन को बैलेंस किया है एंड हाइड्रोजन एंड आयरन आर नॉट बैलेंस्ड. पिक एनी ऑफ दीज एलिमेंट टू प्रोसीड फर्दर. अब इनमें से कोई भी एक ले लो, आयरन या फिर हाइड्रोजन. ओके, जैसे हम चलो हाइड्रोजन को ले लेते हैं. लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन एटम पार्टली बैलेंस. ठीक है, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे. अब हम हाइड्रोजन कैसे, इधर साइड रिएक्टेंट साइड कितने हाइड्रोजन है हमारे पास, टोटल 4 2 ज़ा 8, टोटल 8 हाइड्रोजन एलिमेंट्स है हमारे पास. और राइट हैंड साइड हमारे पास ओनली 2 है. तो 8 करने के लिए क्या करेंगे हम, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 में, तो हमारे पास हाइड्रोजन बैलेंस्ड हो जाएंगे. अभी यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने थे, 8 हाइड्रोजन्स, एंड ऑन राइट हैंड साइड वी आर ओनली हैविंग 2. तो हम क्या करेंगे, 8 को 8 बनाने के लिए 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देयर हमारे हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा. नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, थर्ड एलिमेंट लेंगे, उसे हम बैलेंस करेंगे. ठीक है, जैसे हमारे पास आयरन, लेफ्ट हैंड साइड में कितने आयरन है हमारे पास, ओनली 1, एंड इन प्रोडक्ट साइड देयर आर 3 आयरन. तो हम 3 है हमारे पास, तो 1 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे. जस्ट लाइक देखो यहाँ पे हमारे पास 3 है एलिमेंट्स आयरन के, तो हम यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आयरन भी बैलेंस हो जाएगा. Now finally to check the correctness of a balanced equation, we count number of atoms on both sides. 3 elements on the reactant side and 3 elements on the product side. Now 8 elements of hydrogen on reactant and 8 on product side. 4 elements of oxygen and 4 elements of oxygen. The number of atoms on elements on both sides are equal. This equation is now बैलेंस. दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड, इस मेथड को हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से जरूर कर लें. मेक ट्रायल टू बैलेंस इक्वेशन बाय यूजिंग द स्मॉलेस्ट होल नंबर कोफिशिएंट. ओके, नाउ स्टेप 7th, राइटिंग सिंबल ऑफ फिजिकल स्टेट. अब हम यहाँ पे सिंबल से भी डिनोट करेंगे. Carefully examine the above balanced equation. Does this equation tell us anything about the physical state? क्या इससे हमें पता चलता है किसी physical state के बारे में? Physical state like कि solid, liquid, gas, उसकी state क्या है? नहीं. Reactant and products के बारे में हमें नहीं पता चलता. No information has been given in this equation about their physical state. टू मेक अ केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, अगर आपको और अच्छी इन्फॉर्मेशन के संग इस चीज को डिनोट करना है, द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मेंशन्ड अलोंग विद देयर केमिकल फॉर्मूले. द गैसियस, लिक्विड एंड एक्वस एंड सॉलिड स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेड बाय द गैस को लिखते हैं G से, लिक्विड को L, एक्वस को AQ एंड सॉलिड फॉर S. ठीक है, नाउ अ बैलेंस्ड इक्वेशन बिकम्स 3 elements of iron with solid state, H2O in gaseous state, iron oxide in solid state, and hydrogen is in gaseous state. The symbol gas G is used with the H2O to indicate that it hits it the H2O to indicate that in this reaction water is used in the form of steam. ये water हमने gaseous means steam की form में लिया है. Okay. Usually physical states are not included in a chemical reaction unless it is necessary to specify them. Sometimes the reaction conditions such as temperature, pressure, catalyst for the reaction are indicated above and below the arrow. यहाँ पे arrow जहाँ बनाते हैं वहाँ पे हम catalyst और certain conditions को denote कर देते हैं. जैसे टेम्परेचर क्या होना चाहिए उस कंडीशन के लिए ताकि ये केमिकल रिएक्शन हो सके, उसका प्रेशर क्या होना चाहिए, वो सब कुछ हम यहाँ पर डिनोट कर देते हैं. जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जब हम रिएक्शन करेंगे 340 ATM प्रेशर पर, तब हमें ये रिएक्शन मिलेगी. अगर ये कंडीशन नहीं होगी, हमारे पास ये प्रेशर नहीं होगा, सो ये रिएक्शन हमारी पॉसिबल नहीं है. यूजिंग दीज स्टेप्स कैन यू बैलेंस द गिवन टेक्स्ट अर्लियर. मीन्स अब ऐसे ही अगर आप समझ गए हैं तो क्या आप और रिएक्शंस को बैलेंस कर पाएंगे? सो दीज आर द क्वेश्चंस. इफ यू वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन, कमेंट बिलो.